السلام علیکم دوستو، میں محمد ارمان انصاری آج آپ لوگوں کے لیے دوسرا کلاس لے کر کے آیا ہوں۔ اور میں یہ بتا دوں کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کا نام ہے AR اردو کلاسز۔ کل ہم سبھی لوگوں نے ایک بہت چھوٹا سا کلاس، مختصر کلاس کل کیا تھا، جو تھا آپ کا واحد اور جمع کا، ہے نا۔ اس کے بعد پھر آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں، آپ کا جو حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، قصیدہ ہے، منازات ہے، اس کے بعد پھر قافیہ ہے، ردیف ہے۔ یہ سارا چیز میں آج آپ سبوں کو بتاؤں گا۔ اس کے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہم آپ کے لیے 10ویں کلاس کا، آپ کے لیے 12ویں کلاس کا، 9ویں کلاس کا جو بہار بورڈ کا آپ کا نصاب ہے، میں چیپٹر بائی چیپٹر آپ سبھی لوگوں کو کراؤں گا، ہے نا۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل AR اردو کلاسز کو سبسکرائب کریں، اور جو ہمارا لائک کا بٹن ہے، لائک کا بٹن دبا کر ہمیں سپورٹ کریں، تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو لاتا رہوں۔ اس کے بعد پھر آپ کا جو ہوگا، اس کے بعد کلاس جو آپ کا ہوگا وہ ہوگا قواعد کا۔ قواعد میں آپ کا ہو گیا علم، ہو گیا ضمیر، ہو گیا صفت، ہو گیا فعل، ہو گیا مفعول، ہو گیا فاعل، ہو گیا فعل ماضی، ہو گیا، ہے نا۔ تو اس طرح کی ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو میں اپنے چینل پہ دکھلاؤں گا، لے کے آؤں گا، ہے نا۔ تو چلیے آج میں اپنے کلاس کو شروع کرتا ہوں۔ AR اردو کلاسز کا یہ دوسرا ویڈیو ہوگا، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ حمد کیا ہوتا ہے، نعت کیا ہوتا ہے، آپ کا منقبت کیا ہوتا ہے، قصیدہ کیا ہوتا ہے، منازات کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ یہ ہم سبھی لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ حمد ہم لوگ کسے کہتے ہیں۔ حمد کہتے ہیں جس نظم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، ہے نا میرے دوستو۔ کیا کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حمد کہا جاتا ہے۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم لوگ حمد کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا ہو گیا دوسرا نعت۔ نعت آپ کا ہو گیا کہ جس نظم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ وہ ہوتا ہے حمد، ہے نا۔ اس کے بعد جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں نعت۔ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نعت ہے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا ہو گیا منقبت۔ منقبت میں کیا ہوتا ہے کہ جس نظم میں صحابہ رسول یا اولیاء اللہ کی تعریف بیان کی جائے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں۔ صحابہ رسول یعنی رسول کے جو صحابی تھے، رسول کے جو ساتھی تھے، ہے نا، جیسے ابو بکر تھے، ہے نا، اس کے بعد آپ کے بہت سارے صحابی تھے، ان کا اگر جس نظم میں تعریف ہوگی، یا پھر جو اولیاء اکرام ہیں ان کی تعریف ہوگی جس نظم میں، اسے ہم لوگ کیا کہیں گے؟ منقبت کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ کا ہے قصیدہ، ٹھیک ہے نا۔ قصیدہ کیا ہوتا ہے؟ قصیدہ جو یہ لفظ ہے یہ قصد سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قصیدہ لفظ کس سے نکلا ہے؟ قصد سے نکلا ہے۔ اور یہ جو قصیدہ ہے یہ جو ہے آپ کا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قصیدہ کس سے نکلا ہے؟ قصیدہ قصد سے نکلا ہے، اور قصد کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنے کے، ٹھیک ہے نا۔ قصد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ارادہ کرنے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے قصیدہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس نظم میں بادشاہ وقت یا کسی امیر آدمی کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جس نظم میں کسی امیر آدمی کی یا پھر بادشاہ وقت کی تعریف ہوگی اس کو کیا ہم لوگ کہیں گے؟ اسے ہم لوگ کہیں گے قصیدہ، ٹھیک ہے نا۔ جس میں امیر آدمی اور بادشاہ وقت کی تعریف ہو اسے کیا کہیں گے ہم لوگ؟ اسے کہیں گے قصیدہ، ٹھیک ہے۔ قصیدہ لفظ میرے ساتھ دوستو، میرے ساتھ یاد کرو، قصیدہ کس سے نکلا؟ قصد سے نکلا، ٹھیک ہے۔ قصیدہ کس سے نکلا؟ قصد سے نکلا۔ قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو قصیدہ آپ کا
अरबी जबान का लफ्ज है। ठीक है, कसीदा का इमाम मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप सभी लोग नोट कर लेंगे। कसीदा का इमाम किसे कहा जाता है? कसीदा का इमाम मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा जाता है। ठीक है ना, कसीदा का इमाम किसे कहा जाता है? मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा जाता है। ठीक है, जिस नज़्म में बादशाह वक्त या किसी अमीर आदमी की तारीफ होगी उसे क्या कहेंगे हम लोग? कसीदा कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, वह है मनाज़ात। मनाज़ात क्या होता है कि जिस नज़्म में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी जाए उसे क्या कहते हैं? मनाज़ात कहते हैं। ठीक है, इसमें शायर क्या करता है कि अपनी शायरी के जरिए, अपने नज़्म के जरिए, ठीक है ना, अल्लाह ताला की बारगाह में क्या करता है? दुआ मांगता है। ठीक है ना, अल्लाह ताला की बारगाह में क्या करता है? दुआ मांगता है। ऐसे नज़्म को हम लोग क्या कहेंगे? मतलब जिस नज़्म में अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए ऐसे नज़्म को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे नज़्म को हम लोग मनाज़ात कहेंगे। ठीक है ना मेरे दोस्तों, ऐसे नज़्म को मनाज़ात कहेंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर आपका अगला जो लफ्ज है हमारे पास वह है गजल। गजल ये जो है आपका 10th क्लास में भी और 12th क्लास दोनों क्लास में आप सबको को पढ़ना है कि गजल कहते किसको हैं, है ना। गजल होता क्या है? दरअसल गजल हम लोग कहते हैं कि जिस नज़्म में हुस्न व इश्क के जज्बात का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? गजल कहते हैं। हुस्न के माना क्या होता है? खूबसूरती, है ना। हुस्न के माना खूबसूरती, इसके आप सभी लोग समझते हैं प्यार मोहब्बत को कहा जाता है। तो जिस नज़्म में प्यार मोहब्बत की बात की जाएगी उसे क्या कहा जाएगा? आपका गजल कहा जाएगा। ठीक है, गजल का आप लोगों के एग्जाम में और एक क्वेश्चन इससे आता है कि गजल का लग़वी माना क्या होता है। तो आप लोग ज़हन में रखिएगा, गजल का लग़वी माना होता है औरतों से बातें करना। ठीक है ना, गजल का लग़वी माना क्या होता है? गजल का लग़वी माना होता है औरतों से बातें करना। ठीक है ना, उसके बाद गजल में आपको ये मिलेगा कि गजल में आपको काफिया और रदीफ, ये अक्सर आपके निसाब की किताब में दिया हुआ है कि इस गजल के काफिया को अलग कीजिए। 10th क्लास में भी, 10वीं की जमात में भी और 12वीं की जमात में भी काफिया और रदीफ को अलग करना है। यानी कि आपको गजल दिया हुआ है और गजल से आपको काफिया और रदीफ को क्या करना है? अलग करना है। मेरे दोस्तों इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको काफिया और रदीफ ऐसा बताऊंगा कि आपको फिर और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे चैनल से आपका काफिया और रदीफ बिल्कुल साफ हो जाएगा, है ना। और आप बहुत आसानी के साथ क्या करेंगे? उसे पहचान लेंगे इसमें कौन काफिया है और कौन रदीफ है। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पे काफिया क्या कह रहा है? वह हमवजन अल्फाज जो किसी अशार के आखिर में लेकिन रदीफ के पहले आए। ठीक है, काफिया वह हमवजन अल्फाज जो किसी अशार के आखिर में लेकिन रदीफ के पहले आए उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं काफिया। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? काफिया कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम सभी लोग जो है मैं आपको एक शेर सुना रहा हूँ, उससे बताता हूँ कि काफिया क्या होता है और रदीफ क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक शेर मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, एक गजल का। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, सुनिएगा जरा। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब इसमें देखिएगा कि पहला मिसरा और दोनों मिसरा दोनों पे ध्यान दीजिएगा। वह हमवजन अल्फाज जो किसी अशार के आखिर में लेकिन रदीफ के पहले आए। मैं काफिया से पहले रदीफ क्लियर करता हूँ। वह मुस्तकिल कलमा या कलमा जो किसी अशार के आखिर में बार बार आए उसे हम लोग क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। यानी कि किसी भी अशार में ये क्या होगा? रिपीट होगा, बार बार आएगा और वो क्या होगा? मुस्तकिल मतलब अस्थाई होगा, ये बदलेगा नहीं। ठीक है ना, जो आपका रदीफ होता है ये क्या होता है? आपका बदलता नहीं है। जैसे अभी हमने आपको एक शेर सुनाया था कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। यानी कि क्या है दोनों में क्या है? दोनों में आपका दोनों मिसरा दोनों में आ रहा है ना। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दोनों मिसरा में क्या क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है कि नहीं, है ना, रिपीट हो रहा है। अब जब आप ये पूरा नज़म आप देखिएगा, पूरा गजल देखिएगा तो ये आपका क्या है आखिर तक के आपको मिलेगा। ठीक है ना, और जो नहीं बदलता है आखिर तक, गजल के
आखिर तक नहीं बदलता है वो क्या कहलाता है? आपका रदीफ कहलाता है ना? जो ना बदले और आखिर तक रिपीट होता रहे, बार बार आए, है ना, उसको क्या कहेंगे हम लोग? रदीफ कहेंगे। इसमें एक आपका क्वेश्चन और बनाता है रदीफ से कि रदीफ का लग़वी माना क्या होता है? ज़हन में रखिएगा, रदीफ का लग़वी माना होता है घोड़सवार के पीछे सवार होने वाला। ठीक है ना? रदीफ का लग़वी माना क्या होता है? रदीफ का लग़वी माना होता है घोड़सवार के पीछे सवार होने वाला। ये समझ में आया मेरे दोस्तों? अगर समझ में ना आए तो आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि सर मुझे कौन सी बातें आपकी समझ में नहीं आई, फिर मैं आपको बताऊंगा, है ना? रदीफ एक दफा वह मुस्तकिल बदलेगा नहीं। ठीक है? मुस्तकिल कलमा या कलमात जो किसी अशार के आखिर में बार बार आए उसे क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। रदीफ का लग़वी माना होता है घोड़सवार के पीछे सवार होने वाला, है ना? अब देखिए, इससे ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। काफिया किसको कहते हैं? वह हमवजन अल्फाज जो किसी अशार के आखिर में लेकिन रदीफ के पहले आए उसे क्या कहते हैं? काफिया कहते हैं। फिर मैं वही शेर दोहरा रहा हूं, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इसमें क्या है क्या था मेरे दोस्तों? क्या है आपका रदीफ था। तो क्या है कि पहले क्या आया? सोचिए जरा, क्या है कि पहले क्या आया? दिले नादा तुझे हुआ क्या है ना? क्या है कि पहले इसमें हुआ आ गया, है ना, और उसमें क्या आ गया? दवा आ गया। यानी कि हुआ और दवा आपका एक ही वजन में है, हुआ दवा, है ना? ये आपको मिलता जुलता लग रहा है बिल्कुल, है ना? और ये रदीफ के पहले भी है। ठीक है? तो रदीफ के पहले और मिलता जुलता हो, हम वजन को एक ही वजन में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं काफिया। ठीक है ना? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं काफिया। और काफिया का लग़वी माना क्या होता है? पीछे पीछे आने वाला। ठीक है ना? रदीफ का, काफिया का लग़वी माना पीछे पीछे आने वाला। ये है मेरे दोस्तों आपका काफिया और रदीफ। जब आप पूरी गजल को पढ़िएगा आज के बाद तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफिया और रदीफ समझ में आ जाएगा कि काफिया इस गजल में कौन है और रदीफ इस गजल में कौन है। बाकी इस पे मैं तफसीली तौर पे तफसील गुफ्तगू करूंगा जब मैं आपको एक एक लेसन आपके निसाब का पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको जो है इसके बारे में और भी बहुत सारा आपका बच रहा है, मरसिया है ना, और बहुत सारी चीज़ें किताब की है जो मैं आपके सबक के मुताबिक आपको एक एक लाइन, है ना, एक एक लाइन, एक एक लफ्ज आपको बताता चलूँगा। और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी एग्ज़ाम में नहीं होने वाली है, क्योंकि आप जुड़े हैं किसके साथ? आप जुड़े हैं AR उर्दू क्लासेस, है ना? AR उर्दू क्लासेस से आप पढ़ने वाला कोई भी बच्चा इंशाल्लाह इस दफ़ा अपने नंबर से मायूस नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप हमें सपोर्ट करें, आप हमें लाइक करें, आप हमें सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और दूसरी बात, मैं बेसिक थोड़ी सी बुनियादी बातें करना चाहता हूँ आखिर में। ये जो उर्दू होता है, ये उर्दू किस जबान का लफ्ज़ है? जिस तरह से मैं आपसे कहूँ संभावना किस जबान का लफ्ज़ है तो आप कहेंगे सर हिंदी का है ना? उसी तरह से ये जो आपका उर्दू जबान है, उर्दू जबान का जो उर्दू है ये किस जबान का लफ्ज़ है? तो ज़हन में रखिएगा, उर्दू जो होता है ये तुर्की जबान का लफ्ज़ है। ठीक है ना? उर्दू जो है ये किस जबान का लफ्ज़ है? तुर्की जबान का लफ्ज़ है। और उर्दू के माना क्या होते हैं? तो उर्दू के माना होता है आपका लश्कर। ठीक है ना? उर्दू का माना क्या होता है मेरे दोस्तों? उर्दू का माना होता है आपका लश्कर। ठीक है ना? तो अगला क्लास आपका कवायद का होगा, लफ्ज़ बताऊंगा, जुमला बताऊंगा और अलम बताऊंगा। एक ही क्लास में सारे जो आपके जुमला है, अलम है, लफ्ज़ है, ये सारा मैं ख़त्म करूंगा, है ना? अब इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू और क्लास को ख़त्म करते हुए फिर आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।